वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईपीएफओ के इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ के एमसीक्यूज। ये सेट 1 है और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बेस्ड है और ये आपको एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हमें और वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपना वीडियो और सेशन शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। What is the main objective of the Industrial Dispute Act 1947? आपके ऑप्शंस यहाँ हैं। To regulate factory safety, to ensure industrial peace and harmony, to control trade union, to manage wages. आंसर होगा to ensure industrial peace and harmony. इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशंस नहीं है, बस इतना ही जानना है कि द एक्ट हेल्प्स टू प्रिवेंट एंड सेटल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स थ्रू लीगल मैकेनिज्म। लीगल तरीकों से आप इस डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं, यही इस एक्ट में लिखा हुआ है। बाकी ये सिर्फ वन लाइनर है, टू इंश्योर इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मोनी। हमें 50 क्वेश्चंस कवर करने हैं तो हमें जल्दी क्विक आंसर्स देने होंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A strike means a dismissal of worker, stoppage of worker by employer, collective stoppage of work by employee, locking factory gates. The strike means answer C, collective stoppage of work by employee. Workers stop work together to press their demands. Strike is very easy to remember. So workers stop their work to put their demands in front of the employee. Let's move to the next. A lockout is. What is a lockout mean? A strike by employee, refusal to work by the workers, temporary closure of work by employer, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेटलमेंट। चलिए जल्दी आंसर कीजिए। Answer will be temporary closure of work by employer. It's an employer's action during dispute. जैसे कि स्ट्राइक था तो वो एम्प्लॉय कर सकते हैं, बट द एम्प्लॉयर के हाथ में क्या है? द employer can do a lockout. This is under employer's hand, and strike was under employee's hand. So this was a bit different. Nothing much to learn, just this, that lockout is done by employer and strike is done by an employee. Okay. Let's move to the next question. Who is considered a workman under the Industrial Dispute Act? Only skilled laborer, supervision earning over 10,000, manager and officers, manual skilled or unskilled worker for wages. So the question is simple. Who is called workman? Workman किसे कहा गया है under the Industrial Dispute Act? So the manual, skilled and unskilled workers for wages are workmen.
considered as workmen. Skilled, unskilled, manual, all are under considered workmen under the Industrial Dispute Act. जैसे कि यहाँ पे कहा गया है, except the managerial roles. The managerial works are not under workmen. Let's move to the next question. Lay off refers to. ले ऑफ अभी काफ़ी चर्चा में है और इसके बारे में आपको पता होना भी चाहिए. What is layoff means? Permanent removal of worker, temporary non-employment due to production reason, workers resignation या employers punishment. इसका आंसर होगा बी, टेम्पररी नॉन एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू प्रोडक्शन रीजंस. ये होता कब है? इट हैपन्स व्हेन work stops temporarily due to shortage of material or power. In the company, when there is a shortage of power or material, or you can say some company go through a loss, they lay off some workers so that the burden can come off from their company. So this is a simple meaning of laying off. Let's go for the next question. Retrenchment means, there's option in front of you. What is the mean of retrenchment? Termination for misconduct, voluntary resignation, reduction of surplus staff, or promotion. Retrenchment, answer number C. Retrenchment means reduction of surplus staff. It's a termination of employment due to redundancy. Means some surplus staff get deducted from a company. That system or that like thing is known as retrenchment. Let's move to the next. Notice period before lockout is, how much time is a notice period before lockout? 7 days, 10 days, 14 days, or 30 days. So the employers must give 14-day notice before lockout. So the answer will be answer C, 14 days. The lockout period, no, the notice period before lockout is 14 days. This is like static question. You just have to remember the period. Not much to remember here. Let's move to the next question. The Minimum Wage Act 1948 aims to. What is the aim of Minimum Wage Act 1948? This is the very simple but very important question. To fix wages, promote employment, ensure industrial democracy, or to encourage overtime work. What is the aim? The aim is to fix fair prices. This is the aim for the Minimum Wage Act 1948. To fix the fair amount of wages. It sets a floor wage to prevent exploitation. Means ये देता है every employee a right to get a fair wage. Fair means equal, for the equal work, whether it's men or women or any caste or any creed. So this is the Minimum Wage Act 1948 aims to. Fair wages. Let's move to the next. Again a question related to Minimum Wage Act. So the minimum wage are fixed by. Who fixes the minimum wage? Trade unions,
employers, central or state government, or labor courts? If you are preparing for the EPFO, you must know this. So the answer will be C. Central and state both have a power to fix wages. Like it depends on which location, in which location the work is happening. If it's central government work, the central government will fix, or if it's state government company, then state government will fix the wage. So the governments will fix, no trade union or labor, nothing, just this. So let's move to the next. The Payment of Wages Act 1936 regulates gratuity, bonus payment, timely payment of wages, or pension. So it's timely payment of wages. Payment of Wages Act regulates timely wages of payment. Simple explanation, that it ensures workers are paid fully and on time. Let's move. Wages must be paid within period. Which period? Like within how many days wages must be paid to the workers? 3 days, 5 days, 7 to 10 days or 15 days? बताइए. So it's 7 days for small firms, and for other like big companies like railways or some other companies, it's for 10 days. Wages must be paid within. Let's move to the next question. The minimum bonus under the Payment of Bonus Act is 5%, 8.33%, 10% or 20%. So the minimum bonus is 8.33% under the Payment of Bonus Act, or 100 rupees, whichever is higher. 8.33% or 100 rupees, whichever is higher, that is the bonus for the minimum Payment of Bonus Act. What is the maximum bonus limit? 10%, 15%, 20% or 25%? So it's 20%. Maximum is capped at 20%. 20% bonus you can get. This is the limit, not more than that. You can get less than that, but not more than 20%. Let's move to the next question. Gratuity is payable after minimum service of, like how many years have you worked so that you get eligible for gratuity? Let's see the options. 3 years, 4 years, 5 years or 6 years. So continuous service of 5 years is required to get gratuity. The Factories Act 1948 ensures. What is the Factories Act 1948 ensures? ये किस लिए basically बना था? What is the aim of the Factories Act 1948? Wage protection, worker safety and health, tax deduction or strike control? So answer will be worker safety and health. Factories Act 1948 ensures us safety and health of the workers. Basically, it was made for the safety, not for wages or tax or strike, anything else. Let's move to the next question. Maximum weekly working hours in factories setup. How much work can a maximum weekly a worker can do? Not more than that. Maximum limit should be
48 hours in a week, 8 hours in a day and 6 days per week. So if it's asked, अगर पूछा जाए वीकली कितने आवर, तो 48 आवर्स मैक्सिमम. अगर आवर्स पर डे पूछा जाए तो 8 आवर पर डे, एंड डेज में पूछा जाए तो 6 डेज पर वीक. सो किसी भी तरह पूछा जा सकता है, आवर्स में भी पूछा जा सकता है, वीक में भी पूछा जा सकता है, डेज में भी पूछा जा सकता है. तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम एज फॉर फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट. फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 12 साल, 14 साल, 16 साल या 18 साल, 12 years, 14 years, 16 years और 18 years. So it's 14 years. Below 14 year is prohibited. 14 साल के नीचे not allowed for the working in factories. 14 साल के नीचे जो भी वर्क करता है वो इलीगल माना जाएगा अंडर द फैक्ट्री एक्ट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आते हैं मैटरनिटी पे. मैटरनिटी लीव ड्यूरेशन फॉर द फर्स्ट 2 चिल्ड्रेन. पहले 2 बच्चों के लिए मैटरनिटी लीव कितना दिया जाता है? 12 वीक्स, 20 वीक्स, 26 वीक्स और 30 वीक्स. This is the important question. So it's 26 weeks for first 2 children. So women get 26 weeks paid. And leave shoot क्या है? Paid leave for the first 2 children. But third child के लिए I think it's 12 week, but I'm not sure. So you will देख लीजिएगा आप. थर्ड चाइल्ड के लिए 26 weeks नहीं है. It is less than 26 weeks. But the first 2 child, a woman get 26 weeks leave. Contract Labor Act regulates managers, contract workers, apprentices or civil servants. Answer: contract labor is contract workers. Of course, this is easy. Contract labor is for contract workers. Let's move to the next question. इंडस्ट्रियल लेबर्स में काफ़ी कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का, कुछ एक्सप्लेन ज़्यादा किया नहीं जा सकता. इट्स लाइक MCQs, तो इसलिए जल्दी जल्दी करके आपका क्विक रिवीजन हो जा रहा है. एक ही वीडियो में 50 क्वेश्चंस, तो हमें जल्दी कवर करना पड़ेगा ताकि हम सेट 2 भी लाके आपका पूरा सेट कंप्लीट कर पाए. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या बोल रहा है? मिनिमम मेंबर्स टू फॉर्म अ ट्रेड यूनियन. हाउ मेनी मेंबर्स इज नीडेड टू फॉर्म अ ट्रेड यूनियन? मिनिमम कम से कम कितने मेंबर चाहिए ट्रेड यूनियन को फॉर्म करने के लिए? तो एटलीस्ट 7 मेंबर्स आर नीडेड टू फॉर्म अ ट्रेड यूनियन. आंसर विल बी बी. द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 अप्लाइज टू. ये एक्ट किस पे अप्लाई होता है? ऑल ऑफिसर्स, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट विथ 100 or more workers, government departments, only public sector units. सो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट क्वेश्चन में ही आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 अप्लाइज टू इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट विथ 100 or more workers. यहाँ पे आपको घुमाने के लिए 50 या 1000 भी दे सकता है, ये याद रखिएगा. 100 और मोर वर्कर्स के लिए ये एक्ट अप्लाई होता है. 100 plus workers. Just that. The term conciliation officer is related to. Conciliation officer related to settlement of industrial disputes. ये सेटल करते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. अगर
इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो जाए वर्कर्स और एम्प्लॉयर के बीच, तो ये काउंसिलेशन ऑफिसर इन डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं या सेटल करते हैं। ट्रेड यूनियन एक्ट पास्ड इन, ट्रेड यूनियन एक्ट कब पास हुआ था? 1919 में, 1926 में, 1932 में, 1947 में? ये आपको पता होना चाहिए। ये पास हुआ था 1926 में। और ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड राइट्स ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया। और अभी आपको बताया गया है कि ट्रेड यूनियन में मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए, जो कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु कैन डिक्लेयर इंडस्ट्री एज अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस? इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि इंडस्ट्री को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस कौन डिक्लेयर कर सकता है? किसके हाथ में ये पावर है? किसके हाथ में ये पावर है जो कि डिक्लेयर कर सकता है इंडस्ट्री को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस? पार्लियामेंट, लेबर कमिश्नर, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब वॉट एवर गवर्नमेंट इज सुटेबल, स्टेट और सेंट्रल, ये इस इंडस्ट्री को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस अपने हिसाब से डिक्लेयर कर सकते हैं। और इसमें कौन कौन सा इंडस्ट्रीज आ सकता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इसको आप पब्लिक यूटिलिटी में घोषित कर सकते हैं। Which act provide for the payment of compensation to workers for injuries? कौन से एक्ट में ये लिखा गया है कि इंजरीज होने के बाद वर्कर्स को पे किया जाएगा? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट, ईपीएफ एक्ट या ट्रेड यूनियन एक्ट? वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट। इसमें बताया गया है कि किसी भी इंजरी होने के बाद कंपनसेशन दिया जाना चाहिए एम्प्लॉयर के द्वारा वर्कर्स को। It ensures financial compensation for work related injuries or death. ये एक्ट में लिखा हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में। Which act deals with social security for employees? कौन सा एक्ट सोशल सिक्योरिटी देता है एम्प्लॉयज को? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, फ्रीडम फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट? So it's answer number A, Employers Provident Fund Act 1952. This act deals with social security for the employees, like retirement benefits, so that they get social security after they get retired. Next question is, under the EPF Act, contribution by employee and employer is, how much contribution is done by employee plus employer in EPF Act? So 12% each. 12% employer contribute करता है और 12% employer या employee contribute करता है of their basic wage in the EPF account. So 12% each contributed. अगर एम्प्लॉय चाहे तो 12% से ज़्यादा भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन एम्प्लॉयर इतना ही कंट्रीब्यूट करेगा। अगर ये चाहे एम्प्लॉय जो पे कर रहे हैं वो ज़्यादा पे कर सकते हैं अपना ईपीएफ, लेकिन एम्प्लॉयर 12% ही करते हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इतना याद रखिएगा कि 12% ईच कंट्रीब्यूट करते हैं ईपीएफ अकाउंट में। और ईपीएफ अकाउंट अभी हम लोगों ने पढ़ा था किसके लिए? सोशल सिक्योरिटी के लिए।
द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट वॉज पास्ड इन, ग्रेजुएटी एक्ट कब पास्ड हुआ था? 1952, 65, 72 और 85? आंसर विल बी 1972। ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स फॉर ग्रेजुएटी पेमेंट टू एम्प्लॉइज कंप्लीटिंग 5 years ऑफ सर्विस। मिनिमम 5 years होना चाहिए तो ये आपको ये ग्रेजुएटी मिलेगा। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट was passed in 1951, 1961, 1976 या 1988? Answer will be 1961. It provides maternity leave and benefits to female employee. Maternity benefit एक्ट में इतना ही पता करना है कि ये कब लागू हुआ था, 1961 में, और ये किसके लिए है? फीमेल एम्प्लॉय के लिए। अभी आपको पिछले क्वेश्चन में पढ़ाया गया था कि फर्स्ट चाइल्ड और फर्स्ट और सेकेंड चाइल्ड के लिए कितने वीक्स के मैटरनिटी लीव दिया जाता है, जो कि आप बताएंगे अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो कमेंट बॉक्स में। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच एक्ट प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर? यहाँ पे आंसर पहले से ही दे दिया गया है। सो इट्स चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। चाइल्ड लेबर को ये चाइल्ड लेबर एक्ट प्रोहिबिट करता है, रोकता है। इट बैन्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर इन हैजर्डियस वर्क। 14 साल के बच्चों को काम करने से ये एक्ट स्टॉप करता है, रोकता है। द अप्रेंटिस एक्ट वाज पास्ड इन 1961। अप्रेंटिस एक्ट भी 1961 में ही पास हुआ था। इट रेगुलेट्स ट्रेनिंग ऑफ अप्रेंटिस इन इंडस्ट्री। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है अप्रेंटिस एक्ट पर, बस ये ईयर याद रखिएगा। नेक्स्ट, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कौन कौन से अथॉरिटीज आते हैं? सो इसमें लेबर कोर्ट भी आ जाता है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल भी आता है और नेशनल ट्रिब्यूनल भी आता है। तो आंसर होगा डी। आंसर होगा आंसर डी, ऑल ऑफ द एबव। दिस ऑथोरिटीज हेल्प्स इन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एट डिफरेंट लेवल। हर एक लेवल पे डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए ये 3 बॉडीज आते हैं। नेशनल लेवल के नेशनल है, इंडस्ट्रियल लेवल के इंडस्ट्रियल है, और अगर इससे मैटर आगे जाता है तो लेबर कोर्ट्स भी हैं ये डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द एबव। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनफेयर लेबर प्रैक्टिस? इसमें से कौन सा अनफेयर लेबर प्रैक्टिस नहीं है? थ्रेटनिंग वर्कर्स, विक्टिमाइजिंग ट्रेड यूनियन मेंबर्स, कलेक्टिव बार्गेनिंग, रिफ्यूजल टू बार्गेन। कौन सा अनफेयर नहीं है पूछा है, नहीं है, ये याद रखिएगा, नॉट लिखा हुआ है यहाँ पे, नॉट। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर विल बी कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग एक फेयर एंड लॉफुल मेथड है टू सेटल डिस्प्यूट्स। ये बिल्कुल भी अनफेयर नहीं है, ये फेयर है, फेयर लेबर प्रैक्टिस है, और ये हुआ है डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए। बाकी तीनों इज अनफेयर। द टर्म abjudication refers to settlement by negotiation, settlement through court or tribunal, strike action or arbitration. Answer number B, settlement through court or tribunal.
बोनस इज पेएबल टू द एम्प्लॉयज ड्रॉइंग सैलरी अप टू, कौन से कितने सैलरी पाने वाले लोगों को बोनस दिया जाता है? 15,000, 21,000, 25,000 और 30,000. So employee earning 21,000 or less are eligible for bonus under the Bonus Act. So answer will be 21,000. Payment of Bonus Act applies to establishment with at least, इसके कहने का मतलब है कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट कौन से एस्टैब्लिशमेंट में लागू हो सकता है, जैसे कि जिसमें 5 एम्प्लॉय है उसमें पेमेंट ऑफ बोनस अप्लाई हो सकता है, 10 वर्कर्स हैं वहाँ हो सकता है, 20 वर्कर्स हैं वहाँ हो सकता है, या 50 वर्कर्स हैं वहाँ हो सकता है. कहाँ पे ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट अप्लाई हो सकता है? तो इट इज एप्लीकेबल टू एस्टैब्लिशमेंट विद 20 और मोर एम्प्लॉय. पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट अप्लाई हो सकता है 20 और ज़्यादा वर्कर्स जहाँ पे भी काम कर रहे हो वहाँ पे. The maximum hour of overtime allowed per quarter under Factories Act. फैक्ट्रीज एक्ट के मुताबिक मैक्सिमम कितने आवर का ओवरटाइम कराना पर क्वार्टर अलाउ है? 50 आवर्स, 75 आवर्स, 100 आवर्स या 125 आवर्स. So answer is overtime is restricted to 100 hours per quarter. Answer will be 100 hours. Which act covers safety, health and welfare in factory? ये क्वेश्चन घुमा के आया है, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं ये कि कौन से एक्ट में ये कवर होता है सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर इन फैक्ट्रीज. अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप आंसर कर पाओगे. फैक्ट्रीज एक्ट 1948, आईडी एक्ट, ईपीएफ एक्ट या बोनस एक्ट. आंसर होगा फैक्ट्रीज एक्ट. इट लेज डाउन रूल्स फॉर वर्किंग कंडीशन एंड वर्कर्स हेल्थ. हमने ये फैक्ट्रीज एक्ट पहले भी पढ़ा है. वही क्वेश्चन घुमा के दिया गया है. यहाँ पे पूछा गया कि विच एक्ट इंश्योर्स इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. कौन से एक्ट में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के बारे में लिखा गया है? सो इट्स इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976. इस पे लिखा गया है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. इट प्रोहिबिट्स जेंडर बेस्ड वेज डिस्क्रिमिनेशन. अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन इज. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के मुताबिक रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन कितना तय किया गया है? 7 days wages per year of service, 10 days wages per year, 15 days wages per year या 30 days wages per year. Answer is employee gets 15 days average pay per completed year of service. Means answer would be 15 days. वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, आधा घंटा से ज़्यादा का वीडियो हो गया है, बट क्वेश्चन भी काफ़ी कवर करने हैं. 50 क्वेश्चंस हैं. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट वाज इनेक्टेड इन. कौन सी ईयर में ये एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट लागू हुआ था? 1946, 1948, 1952 या 1961. आंसर विल बी 1948. ये क्या करता है? मेडिकल और कैश बेनिफिट्स देता है एम्प्लॉय को. ESI contribution by the employer is. कितना कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉयर ESI में? 3.25%, 4.75%, 6.5% या 10%. बताइए.
So the employer contribute 4.75% and the employee 1.75%. अगर एम्प्लॉय आता है तो 1.75% और अगर एम्प्लॉयर आता है तो 4.7%. यहाँ एम्प्लॉयर पूछा था, अगर एम्प्लॉय पूछता तो 1.7% होता. तो ये ध्यान दे दीजिएगा कि क्वेश्चन पूछा किस बारे में है, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय. द टर्म कलेक्टिव बार्गेनिंग मीन्स individual negotiation between employer and group of employee, government negotiation या arbitration. It is a joint discussion between employer and employee for mutual benefit. So it's negotiation between employer and employee. Labor welfare funds are managed by, labor welfare funds कौन मैनेज करता है, employer, government, tripartite committee या workers union, कौन करता है बताइए, आप बताइए, गेस कीजिए. इसका आंसर होगा tripartite committee, manage jointly by representatives of all stakeholders. jointly मैनेज किया जाता है ये लेबर वेलफेयर फंड. The Shops and Establishment Act is enacted by, Shops and Establishment Act किसके द्वारा इनेक्ट किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट. इट इज a state act regulating working condition in shops and offices. Which act governs dispute in public sector banks? पब्लिक सेक्टर बैंक में अगर डिस्प्यूट हो जाए तो कौन सॉल्व करता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. कौन से एक्ट के मुताबिक ये डिस्प्यूट सॉल्व किया जाता है, बैंकिंग रेगुलेशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस या बोनस एक्ट. बताइए, यू मस्ट नो दिस. ये सॉल्व किया जाता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के मुताबिक. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अप्लाइज टू ऑल द इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग बैंक्स. सभी जगह ये एक्ट अप्लाई होता है डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए, बैंक्स में भी यही इस्तेमाल होता है. इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल अवार्ड रिमेन इन फोर्स फॉर, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल अवार्ड कितने साल के लिए माननीय होता है, सो ये होता है 1 ईयर. अवार्ड रिमेन इन्फोर्सेबल फॉर 1 ईयर और अनलेस एक्सटेंड भी किया जा सकता है, लेकिन जनरली 1 ईयर के लिए ही होता है. एम्प्लॉय इंजरी अंडर ESI मीन्स, एम्प्लॉय को इंजरी हुआ है कैसे पता चलेगा, एक्सीडेंट ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स, accident anywhere, accident while on travel, or none of this. ड्यूटी आवर्स के दौरान अगर उन्हें एक्सीडेंट होता है किसी भी वर्कर को तो ESI के अंदर कवर होगा. एनी एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ और इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स विल बी कंसिडर्ड इन द एम्प्लॉयमेंट इंजरी एंड ESI, मतलब एम्प्लॉयमेंट सेफ्टी एक्ट में काउंट किया जाएगा और इन्हें कंपनसेशन भी दिया जाएगा. ये आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है शायद. लेबर लॉ डील्स विथ पॉलिटिकल डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, पर्सनल ग्रीवेंस और सिविल केसेस. लेबर कोर्ट, सॉरी नॉट लॉ, लेबर कोर्ट किस चीज से डील करता है, ये डील करता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से. लेबर कोर्ट डील करता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जैसे कि दे एजुकेट ऑन इश्यूज लाइक डिसमिसल एंड रिट्रेंचमेंट. मतलब अगर किसी एम्प्लॉय को हटा दिया जाए कंपनी के द्वारा
तो ये सब डिस्प्यूट अगर जाता है तो ये लेबर कोड में डिस्कस होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के मुताबिक। तो ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन का सेशन है और ये है 50th क्वेश्चन। द मेन पर्पस ऑफ लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया इज, लेबर लेजिस्लेशन का मेन पर्पस क्या है, मेन उद्देश्य क्या है लेबर लेजिस्लेशन का इंडिया में, भारत? टू प्रमोट एम्प्लॉयज इंटरेस्ट, मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस एंड प्रोटेक्ट वर्कर्स, रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट और टू इनकरेज स्ट्राइक्स। तो आंसर आपके सामने है, टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस एंड प्रोटेक्ट वर्कर्स। इसके लिए हमें लेबर लेजिस्लेशन की काफ़ी आवश्यकता है। लेबर लॉज क्या करता है, बैलेंसेस वर्कर्स वेलफेयर विद इंडस्ट्रियल हार्मनी। इंडस्ट्री में काम काफ़ी शांतिपूर्वक होने के लिए ये लॉ और एक्ट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आपको मिल जाएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली आपका प्रिपरेशन अच्छा जा रहा होगा और ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सो स्टे ट्यून फॉर द सेट 2। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस।